In the last class, I started off with this chapter. The chapter started with what is the meaning of a political party. That political party is a group of people who have common ideas, common philosophies. Definitely, they also have certain things which are uncommon, yet they come together, form a party, frame certain strategies, run the government, make law. If they are not elected, then they play the role of the opposition. अब आज हम लोगों को जो है आगे पढ़ना है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब व्हाई डू वी नीड. पहले तो ऐसा नहीं था. इफ वी लुक इनटू द हिस्ट्री, वी डिड नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज. तो व्हाई डू वी रिक्वायर, एंड हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी देयर? 1 2 3 4 5. हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी देयर? तो there are number of functions. And modern democracies, now as I said, that मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर पहले नो डाउट हिस्टोरिकल अगर हम कंटेक्स्ट में देखते हैं तो वी डिड नॉट हैव डेमोक्रेसी. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर ईदर अंडर द रिलीजियस leaders or there were monarchies. But now as democracy is expanding, population, the desires of people, आज हम लोग, आज से अगर आप अपने 20 years पहले अगर आप बोलते what is the meaning of freedom, वो कुछ और था. आज हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं. आज हमारे पास there are many ways that we can raise our voice. Today we know how to fight for our rights. आज से 20 साल पहले अगर आप किसी से बोलते वो कहते छोड़ो कौन करेगा. तो जैसे हमारा एजुकेशन, हमारा स्ट्रेटा, हमारी जो आइडियाज है एक्सपैंड हो रही हैं, वी नीड डेमोक्रेसी इन अ डीप रूट. अब अगर जो एक रूलिंग पार्टी होगा जैसे आपके चाइना में है, इन चाइना you have one communist party. Now what happens is the oppositions are not allowed to raise the main issues. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर that in Switzerland the people, the number of candidates, जितने सीट्स जिसको जिस पार्टी को मिलता है उसको उतना पार्लियामेंट में सीट मिल जाता. So if there is no opposition, if there is no one, then democracy cannot be implemented effectively. अब हम आते हैं, every candidate in the elections will be independent. अगर मान लो पार्टी नहीं है, मतलब the people are not in a group, they are all अलग अलग कर रहे हैं. मैं कर रही हूं, अर्गम कर रहा है, प्रत्यक्ष कर रहा है, everyone is standing in the election. What will happen is no one will be able to make any promises to the people without any major policy changes. अब मैं बोलती हूं कि I am going to make this policy, दूसरा बोलेगा I'll make this policy, but हम मेजर तो कुछ भी we will not be able to promise. हम गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, मे बी सब लोग मिलकर, ठीक है, सब जिसको मिला सब पूल करके अपने we will, but its unity will remain uncertain. जैसे आपके coalitions होते हैं, because I would like मेरे जो policies हैं that should be implemented. दूसरा चाहेगा उसकी जो policies हैं उसे implement करो. Thus there would be no clarity. Then मैं जहां से I have been elected, मैं उस constituency के लिए काम करूंगी. I'll not be doing anything for the other constituency जहां से दूसरा आया है. I'll not be bothered. So if we are responsible collectively, अगर हम collectively करते हैं तो सबके लिए फायदा होता है. अगर हम collectively नहीं करेंगे
तो what will happen is we will not be having the welfare for entire country, entire state. अब कुछ जगहों पर ये आपके पेपर में आता है, इन पंचायत वी डोंट हैव द पार्टी सिस्टम्स. आज भी वहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. इवन टुडे in the local government at the panchayat level we have the direct representative. यानी कि कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है. इट इज नॉट दैट द पर्सन शुड बिकम, मतलब उसके पार्टी का होना चाहिए, वो पार्टी का भी हो सकता है बट वो इंडिविजुअली खड़ा हो सकता है. So although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, which puts a panel of its candidates. मतलब वहां पर पार्टी सिस्टम नहीं है, लेकिन जो सपोर्ट करता है वो एक गुट बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता है. जो दूसरे को सपोर्ट करता है वो दूसरा ग्रुप बन जाता है. और पॉलिटिकल पार्टीज यही काम करते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज ऑफिशियली ग्रुप है. अब मैं अगर कोई, इफ आई एम स्टार्टिंग ए कैंपेन, 5 लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, दूसरे टीचर अगर स्टार्ट कर रहे हैं 5 लोग उनको सपोर्ट करेंगे. देयर माइट बी पीपल जो दोनों को सपोर्ट करे. तो पॉलिटिकल पार्टी जो है एक ग्रुप बना देती है. सो इट इज वेरी इजी, वेदर कंट्रीज आर बिग, स्मॉल, ओल्ड, न्यू, डेवलप, डेवलपिंग, पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे प्ले अ डिसिसिव रोल. The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. मतलब कितनी पार्टीज हमारी होनी चाहिए, कब से ये पार्टी सिस्टम आया है. दिस ऑल इज जैसे 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 आपके सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई है. पहले क्या था, लेट अस कम टू द एग्जांपल ऑफ इंडिया. जो लोग नॉर्थ में रहते थे वो नॉर्थ में ही रहते थे. They never like to go to south and vice versa. साउथ के लोगों को यहां आना बिल्कुल नहीं पसंद था, बिल्कुल भी. एंड दोनों जगह यही होता था, मतलब अगर ईस्ट वाला नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ वाला ईस्ट जा रहा है, एनीवेयर, मतलब विद इन इवन द कंट्री ऑल्सो दे डिड नॉट लाइक टू मिंगल विथ ईच अदर. सबका अपना रहता था. तो रीजनल लेवल पर एवरीवन हैड देयर ओन पार्टी सिस्टम्स. लाइक इन केरला यू हैड द कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम फॉर मेनी इयर्स, मेनी इयर्स, सिंस जब से, मतलब केरला वाज द फर्स्ट स्टेट जहां कम्युनिस्ट पार्टी आई थी. देन आपका वेस्ट बंगाल, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे हैड द, उनका अपना जो कम्युनिस्ट था सीपीआई, वहां पे रहा. पंजाब में रहा. तो एवरीवन हैड देयर ओन पॉलिटिकल पावर. कोई भी ज्यादा जो है सेंट्रल से ज्यादा नहीं रखता था. बट जैसे 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 द सोसाइटी बिकेम लार्ज, कॉम्प्लेक्स, अब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. डेफिनेटली हमारे एस्पिरेशंस, हमारे जो डिजायर्स, हमारी नेसेसिटी भी बढ़ गई. सो देयरफॉर वी नीडेड समबडी जो सबको लेकर चले. लाइक आज साइबर लॉ है, आज साइबर लॉ है. इट वाज नॉट इन द अर्लियर पीरियड. तो हमारी जो नेसेसिटीज हैं दे हैव चेंज ओवर द टाइम. सो वी नीड पीपल, वी नीड रिप्रेजेंटेटिव जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सके, जो पॉलिसीज बना सके. एंड इफ द पॉलिसीज आर नॉट एफिशिएंट, उसके खिलाफ जो है वो अपनी आवाज उठाए. दिस वी विल बी डूइंग व्हेन वी आर डूइंग द पिक्टोरियल वन. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव? देयर इज नो constitutional written any constitutional condition that इतने political party होने चाहिए. There is nothing like that.
अगर आप इलेक्शन कमीशन को निकालोगे, उनके रजिस्टर को निकालोगे, तो यू विल फाइंड अराउंड 767 पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर राइट नाउ रजिस्टर्ड विद देम। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सीरियसली कंटेस्ट करता हो। मे बी उन्होंने फॉर्म किया, उसके बाद दे कुड नॉट रन। जैसे रजनीकांत जी, he formed a political party, but due to his ill health he could not take up that। तो अब रजिस्टर तो हो गया ना, इन द इलेक्शन कमीशन रजिस्टर उनका उनका नाम है। नाउ ही कुड नॉट टेक इट अप, और उन्होंने अपना पॉलिटिक्स से अपना नाम पीछे हटा लिया। बट इस तरीके से देयर माइट बी, नॉट एवरी पॉलिटिकल पार्टी कम्स इन द मेन स्ट्रीम। हर एक पॉलिटिकल पार्टी मेन स्ट्रीम में नहीं आती। दे डोंट कंटेस्ट द इलेक्शंस। इन सम कंट्रीज लाइक चाइना, only one party is allowed to control and run the government, and thus they are called as one party systems. This is because they don't want the chaos. They don't want the chaos मतलब वो लोग ज्यादा confusion नहीं चाहते हैं। In class 9 we noted in China only the Communist Party is allowed to rule। अभी भी इधर अगर आपको कंटेस्ट करना करो, आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, रहने दो, लेकिन यू हैव टू कंटेस्ट फ्रॉम द कम्युनिस्ट पार्टी, या फिर उनके जो मेन अलाइज है, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उनका एक मेंबर बनना पड़ेगा। ऑल्दो legally speaking people are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power। मतलब उन्होंने ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि इस के बाद द पीपल आर सपोज टू गो फॉर दिस। जैसे इन यूएस आई सेड दैट इन यूएस यू हैव अ 2 पार्टी सिस्टम, बिकॉज उनके में क्या होता है, आप 2 3 4 पार्टी होती है, लेकिन वो एलिमिनेशन करते हैं, वो एलिमिनेट करते हैं। मतलब देर आर प्रिलिमिनरी इलेक्शन, देन देर आर सेमीफाइनल इलेक्शन, देन देर इज अ फाइनल इलेक्शन। सो इसीलिए देर आर सर्टेन रेगुलेशंस जो रेगुलेट कर देता कि इस पीरियड के बाद इतनी ही पार्टी ऊपर आ सकती है। बट वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि वन पार्टी का मतलब तो यही है ना कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी। इवन दो चाइना हैज डेवलप्ड अ लॉट, और उसके पीछे पता क्या वजह है? वजह यह है कि चाइना के अंदर आपके जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं वो नहीं है। दैट इज अ कंस्ट्रेंट इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के अंदर लैंग्वेज बैरियर इज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर्स। ऑन द अदर हैंड, अगर हम डीमेरिट्स में बोलते हैं तो वन पार्टी सिस्टम कहां से मजा आया? आई विल साइट एन एग्जाम्पल दैट इन, आप सोचो जब आप 3rd या 4th में आ जाते हो, आजकल मतलब आजकल, पहले तो जब हम स्कूल में थे तो हम 5th तक तो हमारा मदर टीचिंग होता था, बट नाउ डेज आफ्टर 3rd क्लास यू हैव द डिफरेंट टीचर्स। यू हैव डिफरेंट टीचर्स हु पुट डिफरेंट थिंग्स इनटू योर माइंड। आपकी इंग्लिश की टीचर अलग है, हिंदी की टीचर अलग है, मैथ्स के अलग हैं, साइंस के अलग है, एंड इन सम ऑफ द स्कूल्स, इन गुड स्कूल्स, इवन बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के भी टीचर्स अलग होते हैं। हमारे तो थे। I was in Greenfields. I was in JD Titler and then in Greenfields. But there are schools जहां पर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स भी एक ही टीचर पढ़ा देती। Yet अगर हम साइंस कहते हैं तो एटलीस्ट एक टीचर अलग है। अब सोचो कि एक ही टीचर आकर आपको सब कुछ पढ़ाएगा at a higher level. I'm talking about 11th and 12th standard. I'm not talking about nursery and prep. How it is possible? वो गलत भी करेंगे, there will be nobody to tell them. In the same sense, अगर कोई वन पार्टी ऑप्शन होगा तो there would be nobody to criticize them.
अगर उन्होंने कुछ गलत भी किया तो nobody would be there to take up that matter. तो एटलीस्ट डेमोक्रेसी का मतलब है जहां आप क्रिटिसाइज करने की शक्ति रखो, गलत को गलत बोलने का आपको जो है यू आर गेटिंग द राइट थ्रू वोटिंग आपके पास, देन राइट टू स्पीच, यू हैव दोज राइट्स. तो अगर वो नहीं है तो यू कैन नॉट कॉल इट एज डेमोक्रेसी. इन some countries power usually changes between two main parties. As I said, UK, US. Several other parties may exist. और ये जो मैं पढ़ा रही हूं ना, I don't know how many of you are hearing it with concentration. One of the most important from this कि how many party system should be there. In some countries the power changes between two main. Several other parties may exist, contest elections and win a few seats. But उनको उस जितने सीट्स उन्होंने विन किए ना, they must be having that much of power, as I told you in Switzerland. But only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government, like US and UK. वहाँ, the candidates don't stand. वहाँ the position is for two parties, that is two leaders. एंड अगर वो लीडर जीत के आ गया तो देन उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है दैट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ रूलिंग पार्टी. लाइक एज आई टोल्ड यू, ओबामा वाज देयर, तो ओबामा के साथ आई थिंक जो बुश थे. देन अभी जो था, देन नेक्स्ट में आपके ट्रम्प आए थे ओबामा के सामने. देन इस वाले में आपके जो है उसका नाम क्या, बाइडेन एंड ट्रम्प थे, तो बाइडेन आए थे. इस तरीके से in if several parties compete for power, then more than two parties have a reasonable chances of coming to power. जैसे alliance system होता है कई बार हमारे इंडिया के अंदर, not only once, many a times it happens. There are two ways. एक होता है इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, इलेक्शन होने वाला है, तो मुझे पता है कि मेरी पार्टी को 100 सीट्स तो मिलेंगी, माय पार्टी विल, बट मुझे चाहिए 150, तो मैं क्या करती हूं, बिफोर इलेक्शंस आई विल जॉइन हैंड्स विद सम ऑफ द अदर पार्टी जिसका मुझे पता है कि वो मेरे मतलब कि दे विल बी हेल्पिंग मी और वो जीतने में भी दे आर हैविंग चांसेस, एंड उसको हम कहते हैं अलायंस. यानी कि उनके सारे वोट मेरे होंगे. अब क्वेश्चन होगा, मैम अगर हमने आपको सारे वोट दे दिए तो फिर हमें क्या मिलेगा, सीट्स, मिनिस्ट्री. पहले से ही तय हो जाता है कि अगर हम जीतेंगे हम दोनों मिलकर तो ये वाली मिनिस्ट्री आपको जाएगी, दिस विल बी गिवन टू दिस पर्सन, ऐसे करके होगा. This is called as alliance system. Whereas the same alliance का ही एक और रूप है, फॉर्म है, and that is coalition. Now what is coalition? अब मेरी पार्टी जो है वो नहीं जीती एंड कोई भी और पार्टी भी नहीं जीती, ना मेरी जीती ना दूसरे की जीती. Nobody, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 ऑफ द वोट्स हैव टू बी देयर, लेकिन ना मुझे मिला ना किसी और को मिला. नाउ देयर आर टू चांसेस. एक, प्रेसिडेंट जो है ही मे कॉल वन ऑफ द पार्टी एंड आस्क टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड प्रूव द मेजॉरिटी विद इन 10 days. हो सकता है. सेकेंड इज, मतलब वो पहले टाइम दिया जाता है कि मैं अपने वोट किसी और पार्टी के साथ मिला लूं और दोनों मिलकर रन करें.
and that is called as coalition. अलायंस होता है बिफोर द इलेक्शंस. अलायंस में फायदा क्या होता है कि यू नो द प्रोज एंड कॉन्स. आप उसी पार्टी के साथ जीत मतलब कि अपना हाथ जोड़ोगे जिसका आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट करेगा. इन कोएलिशन व्हाट हैपेंस इज यू हैव टू जॉइन द हैंड विथ एनी पार्टी. बाद में हो सकता है कि वो आपको ब्लैकमेल करे, ये नहीं करोगे तो हम अपना सीट पुल कर लेंगे, ये नहीं करोगे तो हम अपना सीट पुल कर लेंगे. एंड इंडिया में ऐसा बहुत 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 बार हुआ है दैट कोएलिशन गवर्नमेंट हैड बीन अ फेलियर both at the center and the state level, दोनों में. But still we have multi-party system. There are time when various parties come together in a coalition. And इसमें यही होता है कि when several parties in a multi-party system joins hand for the purpose of contesting elections and winning power, it's called as alliance or front. Alliance or front. इस वक्त हमारे यहां पर 3 मेजर अलायंसेस हैं. काइंडली गो थ्रू द नोट्स वेरी 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 केयरफुली. एनडीए जो अभी रूल कर रही है, एनडीए इज बीजेपी, मतलब बीजेपी उसका हेड है. एंड ऑल दोस पॉलिटिकल पार्टीज जो उस पॉलिसी को एक्सटर्नली सपोर्ट करती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल? हो भी सकता है कि वो लोग अपना कंटेस्ट भी करें, लेकिन अगर बीजेपी को जरूरत पड़ती है तो उनके वोट उनको ही जाते हैं. तो देयर इज द जो एनडीए है उसका हेड है आपका बीजेपी. यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इनके हेड है आपके कांग्रेस. इनके हेड है आपके कांग्रेस. एंड द थर्ड वन इज लेफ्ट फ्रंट, जो इस वक्त बंगाल में है आपकी ममता बनर्जी. Thus, you can say that in India we have multi-party system, but it often appears messy and leads to political instability. जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था that एनडीए को सपोर्ट करता था AIADMK, दैट इज आपके जो तमिलनाडु के थे. बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स ड्यू टू श्रीलंका. जो हमने श्रीलंका का सिविल वॉर पढ़ा था इन द फर्स्ट चैप्टर, तो देयर वाज सम, तो दे हैड पुल्ड आउट. उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे. एंड अल्टीमेटली जब देयर वाज नो मेजॉरिटी तो द गवर्नमेंट, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट था, उसको रिजाइन करना पड़ा. एंड अगेन इलेक्शंस वर डन, दैट इज मिड टर्म इलेक्शंस हुए. So sometimes alliance doesn't work, but yes, there have been times when alliance has worked. एक अच्छी बात क्या होती है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में वैरायटी ऑफ पीपल आते हैं फॉर द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. ये पूरा का पूरा ऐसा क्वेश्चन भी आता है दैट इज मतलब how many political systems should a country have? This is the question. How many political parties should a country have? अब ये हम नहीं बोलेंगे आज हम आजाद हो गए अब हम 2 पार्टीज रखेंगे, मेरी एक पार्टी तेरी एक पार्टी. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल. पार्टी सिस्टम को हम चूज नहीं करते हैं. इट हैज बीन इवॉल्व ओवर अ टाइम. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन which was in fact ironically formed by N.A. Besant, जो कि एक एंग्लो इंडियन थी. उनको सपोर्ट किया था मोतीलाल नेहरू एंड ऑल रिच पीपल, दोज हु वांटेड टू रिमूव द ब्रिटिश पावर, इंपीरियल पावर. लेटर ऑन उसमें एक एक करके बड़े सारे लोग ऐड होते गए. एंड नेचुरल है कि जब लोग ऐड होते थे तो उनके जो सोच होती थी वो भी अलग होती थी. एंड
यही लोग बाद में अलग अलग पार्टीज बन गए. पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज. It evolves over a long time, depending on the nature of society, social and regional divisions, history of politics, system of elections. Like 2000 tak, nobody had heard about Arvind Kejriwal. I will say I had. Now you will say कि मैम आपको कैसे पता था. तो उसके जो फादर थे अरविंद केजरीवाल की, he was a very famous I think in IT, so that is मतलब इनकम टैक्स के थे. सो सर्टन टाइम्स ऑफिशियल काम से हम, उनका यहाँ पे घर है कौशाम्बी में, वहां हम जाते थे. एट दैट टाइम ही वॉज ओनली एन IAS ऑफिसर, अरविंद केजरीवाल, उनकी वाइफ भी. बट जब 2011 में प्रॉब्लम्स आई, करप्शन के खिलाफ आवाज उठी, अन्ना हजारे जी ने आवाज उठाया, आपके अरविंद केजरीवाल उनके साथ में थे. एंड इट वॉज एट दैट पीरियड इन 2012 व्हेन आम आदमी पार्टी बना. और आज इट इज वन ऑफ द डोमिनेंट पार्टीज इन दिल्ली, पंजाब. इनफैक्ट इस बार तो वो यूपी में भी लड़ रहे हैं. एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फॉर द पास्ट 2 इलेक्शंस ही हैज वन. वो जीते हैं. सो अब कोई मतलब कि बाकी पार्टीज के लिए तो मैं ये कह सकती हूँ कि जनता दल जो थी वो कांग्रेस से ही बनी थी. BSP जो है वो कांग्रेस से बनी थी. बीजेपी भी कांग्रेस के अंदर ही थे ये लोग, बाद में ये लोग इन्होंने अपना बनाया था. लेकिन आम आदमी पार्टी तो बाद में बनी थी. बिल्कुल इन रीजनल में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है उसमें CPI है, दैट वाज आल्सो फ्रॉम कांग्रेस. DMK, दैट वाज आल्सो फ्रॉम कांग्रेस. मतलब ये सब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स थे. बाद में इन्होंने अपनी अपनी पार्टीज बनाई थी. बट आम आदमी पार्टी तो इट इवॉल्व्स ओवर द टाइम, जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है. दीज कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली. एवरी कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस. और मैंने आपको बताया हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोशल, हमारा जो लैंग्वेज बैरियर है उसकी वजह से वी हैव सच. In other countries, there is nothing. No system is ideal for all countries and all situations. तो बाकी कंट्रीज में इसीलिए नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दैट बिकम्स अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर देम. ये सारे कार्टून्स हमारे जो हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, राइट. नाउ हाउ मेनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर इन आवर कंट्री? फर्स्ट, एंड ये वाला जो क्वेश्चन है जो अभी मैं पढ़ने वाली हूं, दिस सेकंड, दिस वन, यहां से दिस कम्स इन 1 मार्कर क्वेश्चन. समटाइम्स 1 और समटाइम्स मे बी 2 क्वेश्चन को क्लब अप किया तो 3 में आ सकता है. Democracies that follow a federal system all over tend to have 2 kinds of political parties. मतलब 2 kinds of. एक जो आपका यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब उनको पावर होता है कि दे आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द नेशनल, जब पूरे पूरे यूनियन गवर्नमेंट के लिए व्हेन द इलेक्शंस आर देयर दे कैन कंटेस्ट. एंड द सेकेंड वन इज फॉर द रीजनल, मतलब जब उनके रीजन में, उनके स्टेट में इलेक्शन होता है, ओनली देन दीज पार्टीज आर अलाउड टू कंटेस्ट. हमारे यहां पर भी है. We have national parties and we have regional parties. National parties वो होती हैं जिनके यूनिट्स, जैसे आपका बीजेपी, कांग्रेस, देन BSP, ये सारे नेशनल पार्टीज हैं. इनके यूनिट्स हर स्टेट में हैं.
बट हर स्टेट का सबका मिलकर सेम पॉलिसी, सेम प्रोग्राम, सेम स्ट्रेटेजी होता है। एंड वेन एवर देर इज यूनियन इलेक्शन, तो ये सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे, वहां पे जो लीडर्स होते हैं, दे नॉमिनेट द कैंडिडेट्स। Whereas for the assembly elections, we have the regional candidates. Every party in the country has to register with Election Commission. While the Election Commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. मतलब इनको ये प्रिविलेज मिलती है, जो पुराने पार्टीज हैं, इनको यूनिक सिंबल मिलता है। Only the official candidates of that party can use that election symbol. Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by Election Commission for this purpose. इसीलिए हम इनको recognized political parties बोलते हैं। Now the Election Commission has laid down, मतलब ये recognized national political parties हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। The Election Commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes. हमारे यहां पर बेटा फर्स्ट पास्ट फर्स्ट पोस्ट एक सिस्टम है। तो आपका जो वोट होता है, नंबर ऑफ वोट्स अ पर्टिकुलर पार्टी गेट्स, या उस वोट को वो मतलब कि दे उसका एक रेशियो बना देते हैं। 100 वोट्स के लिए एक सीट, मतलब दिस इज जस्ट आई एम टेलिंग यू एज एन एग्जांपल। दे डिवाइड दैट, तो अगर उनको मिनिमम उतने सीट्स मिल जाते हैं, या तो वोट या फिर सीट, वोट ही होते हैं जिनको सीट में काउंट एंड काउंट मिलते हैं, मतलब 100 वोट्स 1 सीट, 200 वोट्स 2 सीट्स, ऐसे। A party that secures, if you have the book, I would request each and every person to underline this one. A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the legislative assembly, यानी कि जब स्टेट लेवल पर हो रहा, जैसे अभी यूपी में होने वाला, अभी गोवा में होने वाला है, तो टोटल वोट्स जितने हैं उसका 6% अगर उन्हें मिलता है, तो उसको हम मतलब उस पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाता है। दैट पार्टी कैन बिकम, मतलब अभी मैंने पार्टी बनाई है, ठीक है, मैंने रजिस्टर कर दिया है, मैंने अपनी पार्टी रजिस्टर कर दिया है, मेरी पार्टी रजिस्टर्ड है, ठीक है, बट आई हैव नॉट गॉट द रिकॉग्निशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी। रिकॉग्नाइज होगा तो मुझे कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी मिलेंगे। उसके लिए अब जो इलेक्शंस में लड़ रही हूं, उस इलेक्शन में इफ आई गेट 6% या फिर उसके बराबर का जो 2 सीट्स हैं, द नंबर ऑफ वोट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीट्स। इफ आई गेट दैट, देन अगले इलेक्शन के लिए आई विल बी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी। A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections, that is, or assembly elections in 4 states, and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. परसेंटेज तो 6 है, लेकिन उनको 4 सीट की जरूरत पड़ती है। This I may be having an old book because in my जो मेरे पास वैसा वाला बुक है, उसके अंदर the first is I think तृणमूल कांग्रेस है। Now let us come to the first, INC. This is the oldest one. As I said that Indian National Congress it was actually an organization. It was founded by A.O. Hume.
इट वॉज फाउंड इन 1885 और ये सब कुछ आपको जो है लिखना पड़ेगा. समटाइम्स इट मे कम इन योर 1 मार्कर क्वेश्चन और अगर हो सकता है कि आपके पेपर में ये लिखा हुआ आ जाए, राइट अ शॉर्ट नोट. वैसे पॉसिबिलिटी बीएसपी और बीजेपी की ज्यादा है, बट बिकॉज दिस वॉज द ओल्डेस्ट वन जिसमें हमारे नेशनल लीडर्स इन्वॉल्व थे. It has played a dominant role in the Indian politics at national and central level, state level for many. After 1950, 47 में we got the independence. 47 में we did not have any political system. 46 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 1946 में बनना शुरू हुआ था. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो मुस्लिम लीग के जो लोग थे जो पाकिस्तान को बिलोंग करते थे उनको हटा दिया गया and the constitution for India was made and it was adopted on 26 November 1949 and it was enforced on 26 January 1950. और उसी साल और तब तक हमारे पास कोई मतलब कि इलेक्शन नहीं हुए थे. We had the interim government, मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट था अंडर जवाहरलाल नेहरू. बट 1950 में व्हेन पार्टी मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ, इलेक्शंस हुए तो जवाहरलाल नेहरू वन द इलेक्शन. सीपीआई वाज देयर. सीपीआई आपका 1925 में बन गया था एंड देयर वर 2 or 3 अदर पार्टीज जो अब नहीं है. येट जवाहरलाल नेहरू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. 1950 से लेकर उसके बाद उनकी डेथ के बाद लाल बहादुर शास्त्री एंड देन उनकी डॉटर श्रीमती इंदिरा गांधी. इट वाज देयर टिल 1978. मतलब 1977 तक उनका था. 1978 में आपके जो है जनता दल आया था. देन जनता दल कुड नॉट सस्टेन फॉर मोर पीरियड. 80 में दोबारा इलेक्शंस हुए, फिर 89 तक रहा, फिर 2014 तक वही रहा. तो यू कैन से दैट दे रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड. उनका पार्टी का मतलब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द फिलॉसफी, मतलब उस पार्टी की मेन फिलॉसफी क्या है. तो दे वांटेड मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. They wanted to adopt the scientific procedures. There should be no difference between any religion. And democratic and republic means the people should be the head. 1989 के बाद उनका सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है, बट अभी भी देयर आर पीपल हु सपोर्ट कांग्रेस. राइट नाउ राहुल गांधी इज द पार्टी प्रेसिडेंट. उनसे पहले जो है सोनिया गांधी जी थी. After 1980, sorry, a centrist party. Now, what is the meaning of centrist? When the world was divided, after Second World War, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद वर्ल्ड आपका डिवाइड हो गया. डिवाइड मतलब कैसे हो गया? Some of the people they believed that capitalism यानी कि इंडस्ट्रीज ज्यादा होनी चाहिए. जो रिच पीपल है कंट्री के अंदर, जो अमीर है, बहुत अमीर है, जस्ट लाइक अदनानी, ये क्या नाम है, दिस रिलायंस के जो अंबानी, ऐसे दे शुड इन्वेस्ट इन द इंडस्ट्रीज और वो जो टैक्सेस देते हैं उससे गवर्नमेंट शुड हैव द डेवलपमेंट. उनको हम लेफ्टिस्ट बोलते हैं. लेफ्टिस्ट क्योंकि वो दुनिया के लेफ्ट वाले थे. सारे वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, यूके एंड पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप. दूसरे थे आपके राइटिस्ट जो कि सोवियत को सपोर्ट करती थी. यानी कि ऑल द गवर्नमेंट, all the industries should be owned by government. प्राइवेट को नहीं आने देना चाहिए. गवर्नमेंट शुड प्रोड्यूस एवरीथिंग. बट हम
इंडिया जो है इट फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट. दैट इज वाई कांग्रेस इज अ सेंट्रिस्ट पार्टी. सेंट्रिस्ट मतलब ना वो कैपिटलिज्म को करती है ना सोशलिज्म को, दोनों को साथ करती है. द पार्टी एस्पाउसेस सेक्युलरिज्म, welfare of weaker sections and minorities. It supports new economic reforms but with a human face. 2004 में it was one of the largest party और अभी वो यूपीए का जो है हेड. दिस इज आईएनसी. आपको ये सब कुछ लिखना होगा. नाउ कम्स द रूलिंग पार्टी दैट इज बीजीजेपी. अब हम इसको बीजेपी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी. एंड फॉर द कांग्रेस इट इज द हैंड, फॉर बीजेपी इट इज द लोटस. ठीक है, आपसे मैच करने के लिए पूछा जा सकता है. पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ. देयर वर पीपल लाइक वीर सावरकर, देन आपके थे मतलब देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने मीनू राम, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था. इट वॉज नॉट भारतीय जनता पार्टी. अर्स्ट वाइल का मतलब होता पहले. They wanted to build a strong modern India with Indian culture. वो आप आजकल देख सकते हो, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी में कॉरिडोर बन रहा है. They wanted cultural nationalism और हिंदुत्व. हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि हिंदुइज्म को फॉलो करना, मीन्स द इंडियन कल्चर. They wanted this territorial political integration and that is why Article 370 was removed and Jammu Kashmir became part of India. क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर was not part of India. A uniform civil code अभी आने वाला है, ये आने वाला है. सिविल कोड का मतलब होता है wherever you are living you have to follow the same rules and regulations and everything will be implemented in the same manner. Living in the country irrespective of religion, religious conversion, इन सबको. Earlier limited to north, पहले सिर्फ नॉर्थ में था, as I said. वेस्ट में थोड़ा बहुत था, अब साउथ में है. I remember in 2014 I came to know that people in south also came to know that there is a party called BJP. Because वहां लोग AIADM को ही प्रेफर करते या कांग्रेस. It came to power in 1998 आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में. There were many modernity brought, बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने, many progressive developments were there. और अभी ये लीडर है एनडीए का. It lost the elections in 2004 but right now it is the ruling party till 2000 since 2014. And Narendra Modi is the right now the leader. Amit Shah, आपके इसके जो मेन लोग हैं उनको आपने देखना. So this is what we call as INC and BJP. Then we have BSP. You may have, because this particular question has come many times. इसमें से क्वेश्चन जरूर आया है. बहुजन समाज पार्टी, इट वॉज फॉर्म्ड इन 84 एंड इसके जो फाउंडर मेंबर थे उनका नाम है काशी राम. आईएनसी के आपके थे एओ ह्यूम और बीएसपी के थे काशी राम और इनका जो चुनाव चिन्ह है दैट इज हाथी, एलिफेंट. एंड दिस पर्टिकुलर पार्टी जो है इट इज सपोर्टिंग द बैकवर्ड क्लास, मतलब जो पीछे जिनको बोलते हैं दलित्स, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस मिनॉरिटी, इनके मतलब कि इनके लिए बना था ये बेसिकली. एंड दिस was drawn from the inspirations and teaching of Sahu Maharaj, Mahatma Phule, Periyar Ramaswamy Nayakar and Baba Saheb Ambedkar. Means these people were the one जिनके philosophies पर ये बना है
कि ये जो पीछे रह गए हैं इनके लिए बेसिकली दे आर हैविंग देयर बेस इन उत्तर प्रदेश, एमपी में है लेकिन अभी फिलहाल के लिए एमपी में एनसीपी इज रूलिंग, नेशनल कांग्रेस पार्टी। देन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब में दे हैव, बट उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सपोर्ट है इनका। ममता, सॉरी, दिस मायावती वाज देयर, इट इज देयर। एंड फॉर भारतीय जनता पार्टी द फाउंडर मेंबर का नाम अगर आता तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। In the Lok Sabha in 2004, they had got around 5% and secured 9 seats. But they have their basic seats, उनका जो basic है वो आपका यूपी में ही सबसे ज़्यादा है. Right now they have जो है यूपी में उनका बेस ज़्यादा है. ठीक है. Now we will be left with 3 more parties, that is CPI, CPIM, then National Congress Party, that is NCP, and then the regional parties. Right? I hope that you all are understanding and also side by side revising.